Good morning, dear students. Today we'll be studying a new chapter, that is chapter 6, Combustion and Flame. So, what is combustion? As I have explained you earlier also, that combustion is a chemical process in which a substance reacts with the oxygen of air to give heat and light. That process is called as combustion. Basically combustion क्या है? combustion एक ऐसा chemical process है जिसमें एक substance react करता है oxygen which is present in the atmosphere and it gives you heat and light. ठीक है, मतलब एक ऐसा chemical process जिसमें आपको as a product heat और light मिल रही है, that product is called as combustion, but the necessary condition is that it takes place in presence of oxygen only. Okay, so coming to the next point is oxygen is necessary for combustion to take place. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि the necessary condition for combustion to take place is that the presence of oxygen should be there. Okay, and the examples of combustion from our daily life is respiration, which is a kind of slow combustion of food which takes place in the body to produce energy. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि यू हैव टू मेंशन द एग्जांपल्स ऑफ कंबशन, देन यू कैन गिव दीज एग्जांपल्स. Okay, so now moving ahead, the next example is of rusting of iron. I hope students you have studied this earlier in your previous class, that is class 7th में भी आप सबने पढ़ा होगा rusting of iron in the chapter physical changes and chemical changes, जिसमें आपने rusting of iron के बारे में पढ़ा था. और rusting of iron is also a slow combustion. Okay, so now moving ahead with it, जैसा कि आप जानते हैं जो ये आपका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन कब होती है? व्हेन द आयरन इज एक्सपोज टू द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड द मॉइस्चर इट कंटेन्स ऑक्सीजन. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से रस्टिंग होती है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये इक्वेशन है मैग्नीशियम की. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट. ओके, जैसे कि यू कैन रेफर टू योर बुक पेज नंबर 91, वहाँ पे चारकोल और आपको मैग्नीशियम के एग्जाम्पल दे रखा है. तो आप ये इक्वेशंस याद करेंगे और एग्जाम्स में जब आपसे पूछा जाए तो यू हैव टू मेंशन दीज. नाउ मूविंग अहेड, coming to the types of combustion. Students, there are two types of combustion. One is combustible and the other one is non-combustible substances. Okay, so now what are combustible substances and what are non-combustible? अब हम आगे पढ़ेंगे कि combustible substances क्या होते हैं और non-combustible substances क्या होते हैं. Combustible substances are those substances which can burn are called combustible substances. मतलब जो substances easily burn हो सकते हैं, these substances are known as combustible substances. For example, paper, petrol, kerosene, wood, coal, cow dung, cakes, डीज़ल, चारकोल एक्सेट्रा. ये सारी वो चीज़ें हैं जो easily जल सकती हैं, इसीलिए इन चीज़ों को क्या कहा गया है? combustible substances. Okay, so these substances are known as combustible substances. Now moving ahead to the non-combustible substances. अब non-combustible substances क्या होते हैं? Non-combustible substances are those substances which do not burn are called non-combustible substances. Okay, and examples of these are stone, glass, cement, bricks, soil, sand,
water, iron nails, copper, asbestos, etc. ये वो substances हैं which do not burn and these comes under combustible substances. I hope student this is clear to you. Now moving ahead, अभी आपने पढ़ा व्हाट इज़ कंबशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन इज़ दैट द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए विच कैन बर्न. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है. दैट इज़, एंड ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? एयर में. तो इट इज़ मैंडेटरी दैट एयर शुड बी प्रेजेंट एंड हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. और थर्ड पॉइंट ये है कि जो सब्सटेंस हीट होगा इट शुड बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. अब बच्चों आप आगे पढ़ोगे, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस ईजीली फायर कैच कर सकता है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग अहेड टू द फॉरेस्ट फायर्स, कि फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी बार, you must have heard about the Australian forest fires also, and in news also आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार कि there are fires in the forest. अब ये क्यों होता है देखते हैं. The forest fires occur during the hottest summer day. आपने देखा होगा कि ये जो forest fires होते हैं they generally occur during the hottest summer day. जब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा धूप के कारण ये फॉरेस्ट फायर्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं. इट इज़ अकर्ड ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर. समटाइम्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई ग्रास इन द फॉरेस्ट इज रीच्ड विच मेक्स द ड्राई ग्रास टू कैच फायर. ये इसलिए होता है कि कभी कभी गर्मियों में जो एक्सट्रीम हीट होती है इट समटाइम क्रॉसेस द इग्निशन टेम्परेचर, एंड जो ड्राई ग्रास होती है हमारी फॉरेस्ट में वो इजीली फायर कैच कर जाती है. ठीक है. उनको वो मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है जिसकी वजह से हीट की वजह से वो इजीली फायर कैच कर जाती है. एंड दिस इज़ हाउ फॉरेस्ट फायर्स टेक्स प्लेस. ओके. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अब आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ पार्ट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक. सो वी विल बी स्टडिंग दिस, दैट व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक. आपने कभी पढ़ा है पहले कि माचिस की हिस्ट्री क्या है? चलिए हम आज पढ़ते हैं. A short thin piece of wood having chemical coated at one end which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called matchstick. इसमें आपको देखिए इतनी अच्छी डेफिनेशन दी गई है मैचस्टिक की कि जो मैचस्टिक होती है इट इज़ अ शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड. आप सभी ने माचिस की तीली तो देखी होगी. वो एक एंड से लकड़ी होती है और एक एंड से आपने देखा होगा इट इज़ अ केमिकल कोटेड. उस पर एक केमिकल कोटेड होता है जिसको आप एक रफ सरफेस से जब आप रब करते हो तो इट कैचेस फायर. ऐसा ही होता है ना. सो दिस इज़ कॉल्ड अ मैचस्टिक एंड द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, अबाउट 5000 years ago. व्हाट इट इज़ सेइंग कि 5000 साल पहले small thin pieces of pine wood dipped in sulfur at one end were used as matchsticks in ancient Egypt. एंशंट इजिप्ट में क्या होता था, जो पाइन वुड ट्रीज होती हैं उनकी जो छोटी छोटी पतली पतली
पीसेस जो स्टिक्स होती थी, दे वर डिप्ड इन सल्फर. सल्फर इज़ अ केमिकल. एक एंड से, एंड जिस एंड से वो डिप होती थी वो एंड माचिस की तीली की तरह जलाने के लिए यूज़ होता था एंशियंट इजिप्ट में. ओके, एंड द मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक्स वर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. और जो हम मैच स्टिक अभी यूज़ करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 200 ईयर्स पहले ही डेवलप हुई है. ठीक, नहीं तो उससे पहले क्या होता था, देवर पाइनवुड ट्रीज़ आपने देखी होंगी. उन पाइनवुड ट्रीज़ की पतली पतली स्ट्रिप्स दे यूज टू कट इट डाउन, एंड वो एक एंड से सल्फर केमिकल में डिप करके उसे, एंड दे यूज टू रब इट अगेंस्ट अ रफ सरफेस, और वो उसको मैच स्टिक की तरह यूज़ करते थे. ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, नाउ मूविंग अहेड, दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैच स्टिक टुक प्लेस. अब आप ऊपर वाला पिक्चर देखो. दिस इज़ अ पाइनवुड स्टिक जिसको एक एंड पे सल्फर में डिप करके तब फायर इट कैचेस फायर. और जो नेक्स्ट पिक्चर है ये आपकी मॉडर्न मैच स्टिक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. आपको डिफरेंस समझ में आ गया जो एंशियंट मैच स्टिक थी और जो अभी की मैच स्टिक है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, the next part which comes under this chapter is how do we control fire. So students, you might have noticed that इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे आसपास. बिल्डिंग्स में आग लग जाती हैं, हॉस्पिटल्स में आग लग जाती हैं, फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है. तो फायर तो लग जाती है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू टू कंट्रोल फायर. So students, we can do certain things to control fire is that by removing the fuel or the combustible substances. जो चीज़ें बर्न हो सकती हैं अगर हम वो ही रिमूव कर दें तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड. द नेक्स्ट थिंग इज रिमूविंग द हीट. जब हम हीट रिमूव कर देंगे या हीट सोर्स रिमूव कर देंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि हम फायर कंट्रोल कर सकें. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ दैट इफ़ वी कट ऑफ द एयर सप्लाई. अगर हम एयर सप्लाई रोक देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली फायर कैन बी इजीली कंट्रोल्ड. ओके स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? आई होप you people are not having any doubt in this. In case you are having doubt, you can please ask me in the class. Okay, now moving ahead to the types of combustion. So how many types of combustion are there? Students, there are 3 types of combustion which you will be studying in this chapter, and these types of combustion are rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion. ठीक है, 3 तरीके के कंबशन है. रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन. अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से कंबशंस हैं और इनमें क्या होता है. Moving ahead, the first type of combustion is that rapid combustion. इस rapid combustion में क्या होता है? The combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid. जैसा कि आप समझ सकते हैं नाम से ही, rapid मतलब तुरंत, मतलब बिल्कुल ही short duration of time में तुरंत it is giving a large amount of heat and light. So this type of combustion is known as rapid combustion. Okay students, the combustion reaction in which the large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. Rapid से समझिए तुरंत, मतलब तुरंत within a fraction of seconds it is giving you large amount of heat and light.
and this combustion is known as rapid combustion. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है. अब हम पढ़ते हैं कि स्पॉन्टेनियस कंबशन इज द कंबशन रिएक्शन इन विच occurs on its own without the help of any external heat. That is known as spontaneous combustion. Spontaneous का मतलब कि क्या कहते हैं, अचानक से बिना किसी की हेल्प से, स्पॉन्टेनियस, सडनली. ठीक है, तो ये वो कंबशन रिएक्शंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं, अचानक से, बिना किसी एक्सटर्नल हीट फैक्टर्स की वजह से. दीज कंबशन आर नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन. आपने देखा होगा काफ़ी बार फैक्ट्रीज़ में या हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग्स में सडनली आग लग जाती है, जबकि हम ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं. सो दैट्स कंबशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. रैपिड में क्या था, तुरंत, within a fraction of seconds, it is giving you a large amount of heat and light. That is rapid combustion. Spontaneous combustion is the combustion which occurs on its own. ठीक है, वो अपने ही आप, it catches the reaction and this is known as spontaneous combustion without any, इसमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इज एक्सप्लोजिव कंबशन. अब एक्सप्लोजिव कंबशन क्या होता है, आपने सुने होंगे एक्सप्लोजन विद अ साउंड. एक्सप्लोजन होता है तो आवाज़ आती है. आपने देखा होगा काफ़ी बार, एक एग्जांपल लीजिए, दिवाली पे जब आप क्रैकर्स बर्न करते हैं तो यू हेयर अ साउंड. हर पटाखे की अलग अलग स्मेल ये साउंड होता है. तो उसी तरीके से अब आप देखिए एक्सप्लोजिव कंबशन में क्या है, अ वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव कंबशन. ठीक है, एक ऐसी कंबशन रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज नोन एज एक्सप्लोजिव कंबशन. एक्सप्लोजन एकदम, यानी कि एकदम बूम. आपने देखा होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इट इज़ गिविंग यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड ऑल्सो. सो दिस इज अ एक्सप्लोजन. हम कहते हैं ना कहीं पे धमाका हो गया, तो दैट इज नोन एज एक्सप्लोजिव कंबशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एंड इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी इन द क्लास एंड study these topics from your books also. Okay, so with this we come to the end of the video, and thank you so much students for your patience listening. Thank you.